کرام کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے آپ نے جب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ چوم لیں، ہے جی، اس کے ہاتھ چوم لیں۔ اس سے یہ ہوگا سامنے دیکھنے والا جو ہے اس کے ذہن میں وہم نہیں آئے گا، کوئی گمان نہیں آئے گا یہ جھک رہا تھا، یہ معاذ اللہ اس کو سجدہ کر رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ چوم کر رک جائے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گی یار اس نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے ہیں، اس نے اپنے استاد کے ہاتھ چومے ہیں، اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ چومے ہیں، سجدہ نہیں کیا۔ اگر آپ اپنا ہی ایسا انداز لے گے جس طرح سے ہم سجدہ کرتے ہیں یا ہم رکوع میں جاتے ہیں، اس حد تک ہم جھک جاتے ہیں، تو پھر لامحل دیکھنے والے کو شک تو پڑے گا کہ یار یہ سجدہ کر رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار کے اوپر جانا جائز ہے، وہاں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے، وہاں پر جا کر دعا مانگنا ان کے وسیلے سے، مالک یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تیرا مقبول بندہ ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں تیرا قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے شک اللہ نے انعام فرمایا نبیین پر، صدیقین پر، شہداء اور والصالحین سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اے مالک یہ نیک بندہ ہے تیرا، تیری بارگاہ میں مقبول ترین ہے، اے مالک اس کی وجہ سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ طریقہ ہے، اگر آپ جا کر سیدھے ہی کہیں گے کہ بابا ہی کچھ لینا، بابا دے کے جا، بابا اے کر، بابا او کر، یہ تھوڑا سا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ نہیں، مانگنا اس رب کی ذات سے ہے، کیونکہ وہ رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت پاک میں 2 حکم ارشاد فرمایا، ایک اپنی عبادت کا کہ تم نے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اچھا، اب دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذرا بولا کریں، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر رب کائنات نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی، اپنی عبادت کے متصل ہی ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے اس کی ایجاد، اس کی تخلیق کا جو ظاہری سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقی سبب جو ہے وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اب اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی عظمت، والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دنیا کے اندر وجود کا ظاہری جو سبب ہے، آنے کا جو سبب ہے وہ والدین ہے۔ بذریعہ پیدا اس رب نے کیا ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ کی ذات ہے، وہ ماں باپ کی ذات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل یہ حکم فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا جی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی تو فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز بے شک مومنین پر باندھا ہوا وقت ہے، اس کو وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ، اس کی ڈیفینیشن، اس کا پڑھنے کا طریقہ آپ کو احادیث سے ملے گا۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کائنات کی ذات پر کہ جب ماں باپ کے حقوق کی باری آئی، ماں باپ کی عظمت کی باری آئی، ماں باپ کی شان کی باری آئی، والدین کے حقوق کا خیال رکھنے کی باری آئی، تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے، ان کے ساتھ بات کرتے وقت لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایون کہ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
बुढ़ापे तक की बात रब कायनात यहाँ पर फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से एक, दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो तुमने फला तकुल लहुमा उफ, तो तुमने उनके सामने उफ भी नहीं करनी, उफ भी नहीं करनी। अच्छा मालिक हमने उफ नहीं करनी, फिर करना क्या है? करना क्या है? मालिक फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुमने अपने माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से नहीं बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, तरह कलामी नहीं करनी, उनके साथ लड़ना नहीं है, उनके साथ झगड़ना नहीं है। मालिक पे किस तरह से बात करनी है? रब फरमाता है फला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुमने अपने माँ बाप के साथ प्यार से, मोहब्बत से, नरम लहजे से बात करनी है। किससे बात करनी है? नरम लहजे से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, मोहब्बत से बात करनी है, शफकत से बात करनी है, बुलंद आवाज से नहीं बोलना। अब लफ्ज उफ जो है, लफ्ज़े उफ जो है, उफ से मुराद ये है जो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बच्चा, माँ बाप अपने औलाद को, अपने बच्चे को कोई बात कहते हैं, बेटा फलां काम नहीं करना, फलां काम नहीं करना, फलां काम नहीं करना, अब वो काम जो है बच्चे ने करना है, माँ बाप ने मना कर दिया, बच्चे को वो बात पसंद नहीं आई, माँ बाप ने कहा बेटा ये काम नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, फलां जो तुम्हारा दोस्त है वो ठीक नहीं है, उसका माहौल अच्छा नहीं है, उनके साथ तूने नहीं उठना बैठना, वन विलिंग नहीं करना, इसके ये नुकसानात हैं। अब बच्चे को वो बात पसंद नहीं आई, उसके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, उसके मिजाज के खिलाफ बात होगी। अब बच्चा जो है उस वक्त एक स्टाइल अपनाता है और एक आवाज निकालता है, वो मारता है सर। देखा होगा सबने। अल्लाह पाक सब की औलादों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। मेरे नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, छोटे भाई भी हैं, हमारे बच्चों की तरह भी हैं, और वो मुस्कुरा भी रहे हैं मेरी इस बात पर, और मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये जिंदगी के मामलात हैं, ये मुआशरे के अंदर 80% अगर ये मैं बात करूँ इस तरह से हो रहा है। अब ये नौजवान बैठे, मेरी बात पर बेटा गौर करना, ये आप लोगों के लिए ये मौजूद बयान कर रहा हूं मैं। अब आपको माँ बाप ने कह दिया कि बेटा काम नहीं करना, आपने उनके सामने ऐसे किया, सर मारा और हूं की आवाज निकाली। अल्लाह पता क्या फरमा रहा है यहाँ पर? अल्लाह फरमाता है कि उफ भी नहीं करनी अपने माँ बाप के सामने। उलमाए किराम यहाँ पर फरमाते हैं अगर उफ से छोटा कोई लफ्ज माँ बाप की शान के अंदर होता, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर वो भी इरशाद फरमा देता, वो भी फरमा देता। अब इससे मतलब क्या है कि अपने माँ बाप के सामने सर भी नहीं मारना, हूं भी नहीं करनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेटा जी अल्लाह का कुरान कह रहा है। मैंने आपकी मुस्कुराहट को देखा, इसलिए ये बात शुरू कर दी है कि बेटा इस चीज पर गौर करना है हमने। आगे आपको और समझाता हूं मैं कि इस चीज पर हमने गौर करना है कि यार हमारे माँ बाप हैं, ये हमें कुछ समझा रहे हैं कि बेटा वन मिलिंग मत करना, इसमें नुकसान किसका होगा? माँ बाप को तो तकलीफ पहुंचेगी, जब पैसा लग जाएगा वो तो हड्डियां ही टूटनियां जे, टांके तुहाडे लगने जे, डॉक्टर ने चीरा फाड़ियां तुहाडियां करनियां जे। माँ बाप को तो दिल में तकलीफ पहुंचनी है, लेकिन वो जो तकलीफ डायरेक्ट जो हो रही है वो पेन आपने बर्दाश्त करनी है। वो माँ बाप इसी वजह से मना कर रहे होते हैं बेटा ये काम मत करो, लेकिन बच्चा सो कहता है कि बाबा जी तुहानू की पता जती दौर है, तुहानू की पता वन विलिंग का मजा कितना मजा आता है वन विलिंग का। वो बेटा वो पता जब चलता है जब हड्डी पसली एक हो जाती है। इस चीज से जब बच्चे को समझाया जाता है, बच्चा कहता है हूं, सर मारता है। अल्लाह फरमाता है माँ बाप के सामने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अच्छा जी अब आगे क्या है?
वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप इस कंडीशन को पहुंच जाएं, बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, बिस्तरे मर्ग को पहुंच गए हैं, ये मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, बिस्तरे मर्ग को पहुंच गए हैं, अब वो खुद उठ नहीं सकते, खुद खा पी नहीं सकते, खुद वो चल फिर नहीं सकते, बोल पखाना जो है उनका बिस्तर पर निकल रहा है, अब करना क्या है, करना क्या है? अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब तुमने क्या करना है? अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए दुआ के लिए हाथ उठा देने हैं, दुआ मांगनी है। क्या दुआ मांगनी है? ऐ मालिक, जिस तरह से इन्होंने बचपन में हमें पाला था। कहते हैं ना कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अक्सर नौजवान ये भी कह देते हैं कि जब बूढ़े हो जाते उन्होंने अकल बच्चियां वाली हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, ये बेअदबी है। हमने नहीं कहना अपने माँ बाप के बारे में बाबा जी की है तो अकल ही बच्चियां वाली होगी, ना ना ना, ये कहना नहीं है। लेकिन एक मुहावरा मशहूर है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो उनकी अक्ल जो सी होती है वो बच्चों वाली सोच हो जाती है। अब वो यही बात हो रही है कि या अल्लाह, जिस तरह से इन्होंने हमें बचपन में पाला, ऐ मालिक तू इनके ऊपर अब रहम फरमा, तू इनके ऊपर रहम फरमा। अब ये है बात कुरान की। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि अपने माँ बाप के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, नरम लहजे से बात करनी है। अब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए, बिस्तरे मर्ग पर हैं, बोल पखाना, ये मैं वालिदैन के हुकूक बयान कर रहा हूँ, नौजवान सुन रहे हैं और जिनके माँ बाप मौजूद हैं, मालिक कायनात की बारगाह से दुआ के मालिक कायनात उनकी औलादों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, फर्मा बरदार बनाए। अब बात यह है कि बुढ़ापे को पहुंच गए, बोल पखाना बिस्तर पर निकल रहा है। यहाँ पर अब उलमा इकराम क्या फरमाते हैं, उलमा इकराम क्या फरमाते हैं, अगर आपके माँ बाप का बोल पखाना बिस्तर, आजकल तो पैम्पर आ गए, बड़ी सहूलियात आ गई है ना, उनका अगर ये कंडीशन हो जाती है, बोल पखाना बीच में, अब आपको सफाई करने की जरूरत पड़ रही है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। उलमाए किराम यहाँ पर फरमाते हैं कि सफाई करते वक्त अपने मुंह को ढांपना नहीं है। उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि जब आपने अपने माँ बाप के बिस्तर को साफ करना है, बोल पखाना को साफ करना है, तो अपने मुंह को ढांपना नहीं है किसी कपड़े से। पूछा गया वजह क्या है? वजह बताई गई ये कि जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, तेरा बोल पखाना तेरे बिस्तर पर निकल जाता था, हम तो उस वक्त मुंह नहीं ढांपते थे, हैं? आज तुझे हमारे अंदर से स्मेल आ रही, मुंह से ढांपा जाता है ना, स्मेल आती है, हैं? आज तुझे स्मेल आ रही है हमसे, कल तू बच्चा था बेटा, तुझे हम इसी तरह हिसाब किया करते थे, इसी तरह से साफ किया करते थे। उलमाए किराम फरमाते हैं उस वक्त अपना मुंह नहीं ढांपना कि कहीं उनके दिल के अंदर ये बात ना आ जाए और इनके दिल को तकलीफ ना पहुंचे। इस बात से मेरे भाइयों, माँ बाप बड़ी खूबसूरत तोहफे हैं ये। अगर मैं इस दुनिया के अंदर ये कहूं कि इससे बढ़कर खूबसूरत तोहफा कोई है ही नहीं, तो ये मेरे भाई गलत नहीं, कोई है ही नहीं। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। है कोई ऐसा रिश्ता कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो? मैंने कहा ना कि अगर मैं दुनिया के अंदर ये बात करूं कि इस खूबसूरत तोहफे से बढ़कर कोई दुनिया के अंदर कोई तोहफा नहीं है जो मालिक ने हमें दिया है, इससे बढ़कर अनमोल खुशी कोई नहीं है माँ बाप की खुशी के अंदर। और माँ बाप जो हैं ये बेलौस होते हैं अपनी औलाद के साथ, बेलौस होते हैं। औलाद फर्क कर जाती है कि आज पैसे नहीं है होने के बावजूद भी कर जाती है, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं, वो नहीं भी होते तो किसी से उधार मांगकर भी उसकी शादी करते हैं, उधार पकड़ते हैं, उसकी नौकरी की बारी आती है, पैसे नहीं होते, दर दर पे जाकर ठोकरें खाकर उधार मांगते हैं कि यार मेरे बेटे की नौकरी लगनी है, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है, उसका मुस्तकबिल संवारना है।
यार वो कहां कहां जाकर ठोकरें खाकर हमारे लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं, और अपनी औलाद के लिए ना वो धूप की परवाह करते हैं, ना वो गर्मी की परवाह करते हैं, ना ही वो आग की परवाह करते हैं। कैसे? हर कोई बाप ऐसा नहीं होता जो कुर्सी के ऊपर बैठकर लात के ऊपर लात रख कर पैसे लेके आता। हर बाप ऐसा नहीं होता। और वो जो लात के ऊपर लात रखकर बैठता है, टांग के ऊपर टांग रखकर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, उसके पीछे भी उसकी बड़ी मेहनत होती है। ऐसे ही नहीं बैठ जाता वो भी आकर, उसके पीछे भी बड़ी मेहनत होती है ज्यादातर। तो अगर आप अपने बाप को देखें, या कितने मजदूर बाप होते हैं, कितने मजदूर बाप होते हैं। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो उस जन्नत का दरवाजा बात ज़हन में रख लीजिए कि वो बाप है, वो बाप है। जन्नत का दरवाजा जो है ना, वो आपको गुजर कर वहीं से जाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की खिदमत करते हैं, क्यों जावे पहाड़ में, बाप की परवाह ही नहीं करते। अक्सर देखा गया है माँ की कदर ज्यादा हो रही होती है। और हमारे उलमा इकराम भी, हमारे सनाखा हजरात भी जो से वो मावा जो मर जांदियां, वो हर तरफ इसी चीज को लेकर बैठ गई। या खुदा के बंदे, बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? बाप हम अक्सर बात होती है ना कि माँ जब बच्चा छोटा होता है, गीली जगह पर खुद लेट जाती है, खुश्क जगह पर बच्चे को सुला देती है। यार तुझे पता है वो जो बिस्तर गीला और खुश्क जो है, जिसको तू बिस्तर की बातें कर रहा है, उस बिस्तर को लाने में मेहनत किसकी है? उस बिस्तर को खरीद कर लाने में मेहनत किसकी है? वो बाप की मेहनत होती है। वो बाप है जो बाहर निकलता है। और कोई बाप ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, मालिक तरह तरह की बातें करते हैं, डांटते हैं। मालिक कहते हैं तुझे नजर नहीं आ रहा, तूने फुला नुकसान कर दिया है। कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। और बाप कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजदूरी करते हैं यार, हैं 5-5, 6-6 बिल्डिंगें बुलंदी पर जाते हैं, तगारियां उठा उठा कर लेकर जाते हैं, ईंटें अपने पीठ पर उठाते हैं। अगर कभी उनकी पीठ को देखो तो पीछे जख्म हुए होते हैं। वो बाप जो रोड़ी कूटते हैं यार, उनके हाथों पर छाले बने होते हैं, वो मेहनत कौन कर रहा है? वो बाप ही कर रहा होता है। किसके लिए? उस बेचारे ने तो शाम को एक रोटी खानी होती है यार, एक रोटी खानी होती है। वो 10 रोटियों की कमाई किसके लिए कर कर आता है? वो अपनी औलाद के लिए कर कर आता है। और जब बाप शाम को घर आता है, अगर सामने से औलाद का ये पता चल जाए कि बेटे ने वन विलंगी की हड्डियां तोड़वा कर बैठ गई है, बता उस बाप की सूरत हाल क्या होगी? उसके दिल पर क्या गुजरेगी? उसके ज़हन के अंदर क्या कैसे सवाल आएंगे? फिर सोच वो बाप जो मजदूरी करता था, शाम को 700, 600, 500 लेकर आया। अब वो बता, जब तुझे अस्पताल में लेकर जाएगा, पैसे उधार मांगे, पल्ले से लगाएगा वो। आजकल तो वैसे ही हालात बड़े टाइट हुए पड़े हैं। शाम को रोटी पूरी नहीं होती। नौजवानों को ख्याल करना चाहिए इस चीज का। माँ बाप की बड़ी अजमत है, माँ बाप की बड़ी शान है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फर्मा बरदार बच्चा अपने माँ बाप की दिन में एक मर्तबा जियारत करता है, चेहरे को देखता है, पंजाबी च कहो कि चेहरे नु तकदा जे, अल्लाह ताला उसको एक हज मबरूरा का सवाब अता फरमा देता है। अब मबरूरा का मतलब क्या है? मकबूल शुदा हज, गारंटी शुदा हज, जिन्हों कहने स्टैंप ला रहे हो, स्टैंप लगा हुआ हज, कबूल वो हज। लाखों रुपया लगाते हैं लेकिन यकीन नहीं होता, पता नहीं होता। यही बात होती, पता नहीं साडा हज कबूल होया जे नहीं होया। लेकिन यहाँ पर मेरे महबूब ने क्या फरमाया है कि मकबूल शुदा हज का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी ने खड़े होकर सवाल किया, आका अगर कोई फर्मा बरदार बच्चा अपने माँ बाप की दिन में 10 मरतबा ज़ियारत करता है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको 10 हज्जों का सवाब अता फरमा देता है, 10 हज्जों का सवाब अता फरमा देता है। और ये बात मोहब्बत से देखने की हो रही है मेरे भाइयों, नौजवानों, प्यार से देखना है, पूरियां पाके नहीं देखना, अखा कट के नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, इस अंदाज से देखना कि माँ बाप के दिल को सुकून पहुंच जाए। फिर एक सहाबी ने सवाल किया, आका अगर कोई फर्मा बरदार बच्चा दिन में 100 मरतबा 100 मरतबा अपने माँ बाप की जियारत करता है प्यार और मोहब्बत के साथ, तो फिर तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब के खजाने में कोई कमी नहीं है।
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो मालिक हर चाह पर कादिर है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, मालिक उसको 100 हज्जों का सवाब अता फरमाने में कुदरत रखता है, कुदरत रखता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए। 3 मर्तबा मेरे महबूब ने फरमाया। तो सहाबा ने सवाल किया, आका किस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका, जन्नत ना हासिल कर सका। यह जन्नत और दोज़ख जो है ये आपके सामने है, सामने है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके माँ बाप जिसके ऊपर राजी होंगे उसी का अल्लाह उसके ऊपर राजी होगा। जिसके माँ, समझ जाओ, अगर कोई बंदा कहता है ना कि पता नहीं यार रब हम पे राजी है या नहीं राजी है, नाराज है या राजी है, वो बस अपने गिरेबान में झांक ले और अपने माँ बाप के चेहरे को देख ले। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर राजी हैं तो 100% रब तुम पर राजी है, 100% रब तुम पर राजी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत आ जाए, शादगी आ जाए, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दे, माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दे। मेरे भाइयों, माँ बाप बड़े ही अनमोल तोहफे हैं, बड़े ही अनमोल तोहफे हैं, बड़े खूबसूरत तोहफे हैं। बाप बिस्तर मर्ग पर भी पड़ा है ना तो उसकी रहमत है, वो साया किए होता है। कोई दरख्त होता है ना, जब वो बूढ़ा हो जाता है फल देना छोड़ जाता है, लेकिन उसकी छांव जरूर होती है। बाप अगर से कमा ना रहा हो, काम ना कर रहा हो, वो बिस्तर पर भी पड़ा है तो उसकी छांव है तुम्हारे ऊपर। माँ ऐसी कली है, ऐसी खुशबू है मेरे भाई, जब ये हाथ से निकल जाती है ना फिर समझ में आती है। कितने मसाइल ऐसे होते हैं जो माँ बाप की दुआओं से पार हो रहे होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह से हम आखिरी बात कर रहा हूं, हम कलाम हो रहे होते हैं। रब फरमाता है, मूसा जरा ख्याल से बात करना, मालिक पहले भी तुझसे कलाम करता था, पहले तूने कभी भी वार्निंग नहीं दी, अब क्या मामला हो गया है? अल्लाह फरमाता है, मूसा जब तू पहले मुझसे हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर आता था तो पीछे से तेरी माँ तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठा देती थी, दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। वो क्या दुआ मांगती थी? मालिक मेरा मूसा जरा जलाली है, अगर बात करने में कोई कमी पेशी हो जाए मालिक दरगुजर फरमा देना, दरगुजर फरमा देना। ऐ मूसा अब तेरी माँ मेरे पास आ चुकी है, अब तेरे लिए दुआओं का सिलसिला बंद हो गया है, इसलिए जरा ख्याल से बात करना। अब अंदाजा लगा लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आपकी और मेरी क्या औकात, आपकी और मेरी क्या औकात। हम अपने माँ बाप की कितनी कदर कर रहे हैं, कितनी खिदमत कर रहे हैं, कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं। अगर माँ कभी कह देना बेटा मुझे दवाई की जरूरत, सबसे पहले हम जेब के अंदर गिनती करते हैं कि नोट कम तो नहीं हो जाएंगे। बाप कहता है बेटा मुझे इतने पैसों की जरूरत है, सबसे पहले हमारी गिनती होती है, अच्छा बैंक बैलेंस इतना कम हो जाए, बाबा जी शाम को दवांगे। ये जेब में होने के बावजूद हमारे ये अल्फाज होते हैं। मेरे भाइयों, ये जो कुछ जिंदगी में हमें कामयाबियां मिलती हैं, कामरानियां मिलती हैं, हम जिस स्टेज पर पहुंचते हैं, अगर मैं इस जगह पर बैठा हूं तो ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, ये उनकी दुआओं का है। अगर मैं कहूं ये सारी मेरी मेहनत है, मेहनत बंदा करता है, कितने मेहनत करने वाले हैं हमारे साथ के, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा जरूर है लेकिन आज उस जगह पर नहीं बैठे हुए हैं, इस जगह पर नहीं बैठे। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं मेरे भाई। इसलिए किसी भी जगह पर आप किसी भी पोस्ट पर मौजूद हैं, आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप किसी भी कामयाबी के मैदान में कामयाबियां ले रहे हैं, एक बात ज़हन में रखना, वो कामयाबियां आपके माँ बाप की दुआओं की वजह से है। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।